Hello, welcome students. Now we are going to start the topic structure of email message. In previous video I have explained the benefits of email along with how we can create email account. So student, if you want to use email, then you need an email account which you can create freely on websites like Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, Rediff Mail, etc. Now if you want to send a mail or if you want to receive a mail and see its content, so at that time you must be aware of email address. That means if you want to send a mail, you need an email address of the recipient on which you want to send the email message, which we have already discussed in the previous class. Now whenever we want to send a mail, then we need to click on compose mail button, and the mail that we compose have some particular fields or format that we are going to talk about. So the first structural component of email message is from. The from is the field contains email address of the sender of the mail. That means if suppose you are sending the mail, then from will contain your email address. That means who is sending the mail, that person's email address is be there in from. Then two, so you need to enter the recipient address in to field before you compose the body of the email. For example, suppose you want to send a mail to aryan.nanda@gmail.com. So at that time you need to type the email address in to box. Then next thing is CC. CC stands for carbon copy. So when sending a message to multiple recipients, use the CC field. The email address mentioned this field are visible to all the recipient of the mail. And then next thing is BCC. BCC stands for blind carbon copy. So it is also used to send a copy of the mail to several recipients. However, choose BCC if you do not want to expose your contact's email address to the main recipient. This way, the address of the other recipient mentioned in the BCC field will not be shown. It is therefore called blind carbon copy. अब देखो CC और BCC में डिफरेंस आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपने एक ईमेल मैसेज आप सपोज कीजिए 3 रिसिपेंट को भेज रहे हैं, तो 2 बॉक्स में तो वैसे आप कितने भी लोगों का ईमेल एड्रेस रख सकते हो कि ईमेल एड्रेस ऑफ 1, फिर यहाँ पे कॉलन साइन या कॉमा साइन सेमीकोलन लगा के आप ईमेल एड्रेस ऑफ 2 भी दे सकते हो। इस तरीके से आप ईमेल दे सकते हैं। लेकिन सपोज दैट कि आपने यहाँ पे क्या किया कि 2 में E1 मतलब ईमेल एड्रेस 1 जो abc@gmail.com जो भी आपने दे दिया, फिर CC में आपने E2 मतलब ईमेल एड्रेस ऑफ 2 दे दिया और BCC में आपने ईमेल एड्रेस ऑफ 3 दे दिया। तो इस केस में सेम ईमेल मैसेज E1 को भी जाएगा, E2 को भी जाएगा और E3 को भी जाएगा। लेकिन E1 को ये पता चलेगा कि यही मैसेज E2 को भी गया है और E2 को भी ये पता चलेगा कि वही सेम मैसेज E1 को भी गया है। मतलब जो ओरिजिनल रेसिपेंट है E1 और E2 को उसकी कॉपी जा रही है, लेकिन E1 को ये पता चलेगा कि उसकी कॉपी E2 को भी सेंड की गई है। लेकिन अगर हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी में अगर किसी का एड्रेस देते हैं तो उस केस में इन दोनों को ये पता नहीं चलेगा कि E3 को भी ये मैसेज भेजा गया है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जो कोई ईमेल आईडी जिसको हम हाइड करना चाहते हैं कि किसी को ये ना पता चले कि इसे भी
मैसेज भेजा गया है, तो फॉर दैट वी राइट द ईमेल एड्रेस इन ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड. नाउ नेक्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट लाइन. तो सब्जेक्ट लाइन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईमेल दैट द रिसिपेंट विल सी. When entering the subject line, make sure to include important information which depicts what the email is about. If you are too vague or do not include the subject line at all, your message could not be mistaken for spam and deleted without ever being read. तो इसीलिए कहा जाता है सब्जेक्ट लाइन का बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई ईमेल कंपोज करते हैं तो सब्जेक्ट उसका मीनिंगफुल सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जो आपके ईमेल को डिस्क्राइब करता हो, उसे देना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप कोई सब्जेक्ट नहीं देते हैं या बोगस सब्जेक्ट देते हैं तो वो जो मैसेज है वो स्पैम बॉक्स में चला जाएगा और जो रीडर है वो हो सकता है कि उसे कभी रीड ही ना करे और उसको डिलीट कर दे. देन कम्स बॉडी. तो द बॉडी is the message area where you actually write the message that you want to send. It can be professional letter, memorandum or a note to a friend or a family member. Try to avoid writing too much in email and keep it limited to one screen length. If you have a lot of information that need to be sent, include it in अटैचमेंट. तो बॉडी वो एरिया होता है जहाँ पे हम अपने मैसेज को टाइप करते हैं. अब देखिए यहाँ पे जो हम टाइप करेंगे उसको प्रयास कीजिए कि एक ही पेज में रखिए. अगर आपके पास ज़्यादा कंटेंट है तो उसको MS वर्ड में या किसी फाइल में स्प्रेडशीट फॉर्म में टाइप कीजिए और उसको अटैचमेंट का यूज़ करके इसको अटैच कर दीजिए. अब ये देखिए अटैचमेंट का जो सिंबल होता है वो पेपर क्लिप के फॉर्म में होता है. तो ये आप लोगों ने देखा भी होगा. अभी मैं आपको डिस्प्ले भी करता हूँ. Then after attach files, so it is used to attach or add attachment like file, audio, video, etc. in your email. तो I am going to demonstrate this with example. तो उसके लिए मैं अपना Gmail बॉक्स ओपन करता हूँ. अब इस Gmail बॉक्स में अगर मुझे ये देखिए ये मोबाइल में है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कंपोज का, जो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है, चूँकि ये जो ऑप्शन है ये कंपोज का ऑप्शन है, हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा. तो यहाँ पे कंपोज ओपन होके आएगा. अब जब ये कंपोज ओपन होके आता है तो आप देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम आ रहा है, टू आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है और कंपोज ईमेल आ रहा है. तो ये जो कंपोज, सबसे पहले ये देख लो फ्रॉम में क्या होगा, मेरा ईमेल एड्रेस होगा जिससे मैं भेजना चाहता हूँ. टू में वो ईमेल एड्रेस मैं टाइप करूँगा जिसको मैं भेजना चाहता हूँ. जैसे मैं अपने ही दूसरे ईमेल एड्रेस पे अगर मान लो भेजना चाहता हूँ या सेम ही ईमेल एड्रेस पे भेजना चाहता हूँ तो मैंने उसको यहाँ पे टाइप कर दिया टू में. तो फ्रॉम में हो गया, टू में हो गया. अब यहाँ पे कोई और किसी और को भी मैं सेम सेंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं दूसरा भी ईमेल एड्रेस भी टाइप कर दूँगा. तो ये जो मैसेज है वो दोनों रिसिपेंट को चला जाएगा. तो यहाँ पे मैं केवल अभी एक ही ईमेल एड्रेस रखता हूँ. अब नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि यहाँ पे तो आपको CC BCC नहीं मिल रहा है. तो देखिए CC और BCC आपका टू बॉक्स के बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करने पे मिलेगा. तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा. जब यहाँ पे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे CC भी आ गया है और BCC भी आ गया है. तो आपको ये पता ही है, मैंने बता दिया. CC में वो ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे जिसको हम चाहते हैं कि ओरिजिनल रिसिपेंट को भी पता चले, और BCC में वो ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे जिसको हम चाहते हैं कि हाइड रखना. तो इसको करके देखते हैं. तो CC में मैंने ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया किसी और का, और BCC में मैं कोई दूसरा ईमेल एड्रेस टाइप कर दे रहा हूँ. अब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट बॉक्स दिया है इस सब्जेक्ट बॉक्स में मैं सब्जेक्ट डाल दूँगा, कोई मीनिंगफुल मैसेज होना चाहिए कि यहाँ पे
मैंने दे दिया द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद ये जो बॉडी है, जो कंपोज मेल लिख रहा है, यहाँ पे हम अपने मैसेजेस को टाइप करेंगे। जो भी आपको मैसेज टाइप करना है वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये अटैचमेंट का सिंबल है, ये सेंड का सिंबल है। तो अगर आपको कोई अटैचमेंट लेना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अटैच फाइल में जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज़ अटैच करनी है तो वो आप ब्राउज़ करके अटैच कर सकते हैं। तो ये तो आई थिंक आप सबको पता ही होगा। और अटैचमेंट करने के बाद आप इस सेंड बटन पर प्रेस कर देंगे, जो मैसेज है वो आउटबॉक्स में चला जाएगा, सेंड हो जाएगा। अगर आपको रोकना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं सेंडिंग के प्रोसेस को। लेकिन एक बार जब मैसेज सेंड हो गया तो वो डिलीवर हो जाएगा। तो आई थिंक ये आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिंग एन ईमेल। तो टू राइट एन ईमेल, क्लिक ऑन द कंपोज बटन ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर जीमेल विंडो। और कोई और मेल आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपोज लिख के आएगा। अ न्यू मैसेज विंडो appears as shown in figure 2.5. Write the email address of the recipient to whom you want to send the email in two box. Write the subject of email in the subject box, and the subject gives a brief description of the email. If you want to send the same email to various people, you can use one of the three options available in the Gmail. First, two, you can type multiple email address separated by comma to send the same email to many recipient. जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है कि हम टू में जितने लोगों का हम दे देंगे ईमेल एड्रेस, उनको ये मैसेज चला जाएगा। सेकेंड, carbon copy. तो using this option you can send the same email to several recipient at the same time. And BCC, so this option is same as CC with the only difference that recipient of BCC field are not visible to the recipient to and CC field. So this option is used only when the list of recipient is not to be shared with others. तो अगर हमें शेयर नहीं करना है तो ऐसे केसेस में we use BCC. Now write the message in the message area, and you can attach various files such as documents, images, links with email as per your requirement with the help of this attachment icon जो रेड कलर के बॉर्डर में दिख रहा है आपको। ये मैंने अभी डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दिया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेंडिंग एन ईमेल। तो वंस यू हैव कंपोज्ड एन ईमेल, click on the send button present at the bottom of the new message window to deliver the email to the specified email addresses. When you send an email, a copy is automatically stored in the sent folder. You can refer to this folder whenever you need to view, resend or forward an email. तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप सेंड बटन प्रेस करते हैं तो जो मैसेज है वो सेंड हो जाता है। जो भी रिसिपेंट या रिसिपेंट्स के एड्रेस आपने दिए हैं, ईमेल एड्रेस दिए हैं, वहाँ पे वो जो मैसेज है वो डिलीवर हो जाता है। साथ ही साथ आपके मेल बॉक्स में एक फ़ोल्डर होता है सेंट का, उसमें उस मैसेज की एक कॉपी स्टोर हो जाती है जिससे आप कभी भी रेफ़र कर सकते हो। अगर आप उस मैसेज को देखना चाहते हो कि मैंने क्या ईमेल सेंड किया था, या उस मेल को आप दोबारा से किसी और को रिसेंड करना चाहते हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो सेंट फोल्डर होता है दैट विल स्टोर ऑल द ईमेल दैट यू हैव सेंट टू द रिसिपेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग ईमेल्स। तो देखिए, टू रिप्लाई एन ईमेल फॉलो दीज स्टेप। तो क्लिक ऑन ईमेल दैट यू वांट टू ओपन. Clicking on it will open the email message window. Now you will find reply, reply all or forward option right below the message. Read the message and respond using one of the above mentioned option. Click on reply arrow to respond to the message, or simply click on reply button present at the bottom of the message. तो ये देखिएगा, ये आपके ऑप्शंस होते हैं रिप्लाई, रिप्लाई और फॉरवर्ड।
Now a new compose window will appear just below the original mail. Observe the recipient address will automatically be there. Once you have composed and reviewed your reply, click on send button. तो इसको भी मैं यहाँ पे आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। मैं इनबॉक्स में जाता हूँ। इनबॉक्स में देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का ये मैसेज है, ये ड्राफ्ट मैसेज है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे कई सारे मैसेजेस मुझे आए हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए ये माइक जीओवी का एक मैसेज आया हुआ है। अब आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिप्लाई ऑल ऑप्शन आ रहा है। ये जो ऑप्शन है ये रिप्लाई ऑप्शन है, और फिर ये जो ऑप्शन है ये फॉरवर्ड ऑप्शन है। तो अगर आप ईमेल मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ फॉर रिप्लाई, दिस इज़ फॉर फॉरवर्ड, and if you click on it then you will get reply all option। तो जैसे मैंने मान लो रिप्लाई बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देखिएगा ये रिप्लाई में अगर आप देखें ध्यान से तो 2 में उसका ईमेल एड्रेस आ गया जिससे हमें मेल आया था, और फ्रॉम में मेरा ईमेल एड्रेस आ गया, और टाइटल जो थी वो वैसे ही रहेगी, बस उससे पहले RE लग जाएगा जो ये बताएगा कि ये रिप्लाई है उस मैसेज का। और उसके बाद अगर मुझे मेल सेंड करना है तो ये सेंड बटन प्रेस कर देंगे, और अटैचमेंट करने के लिए हम इस बटन का यूज़ करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अटैचिंग अ फाइल। तो देखिए ईमेल प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू अटैच फाइल फॉर हाई स्पीड डिलीवरी टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। Attaching a file to an email is a convenient method to send important document or file which can be text, photograph, videos, music, letters, etc. तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि किसी भी टाइप की फ़ाइल को आप एज एन ईमेल अटैचमेंट रख सकते हैं और अटैच करके आप सेंड कर सकते हैं। तो टू अटैच अ फाइल टू एन ईमेल फॉलो दीज स्टेप। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि यू नीड टू क्लिक ऑन द अटैच फाइल आइकन। अटैच फाइल आइकन ये देखो ये पेपर क्लिप जैसा सिंबल बन के आता है, प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द न्यू मैसेज विंडो। तो जैसे अगर आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो बॉटम में आपको यहाँ मिलेगा, और अगर आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो ये सिंबल आपने देखा था कि टॉप पे था। Present at the bottom of the new message window, the open dialog box appears. Now browse through your computer to select the desired file and then click on Open button. Here you will find that other options like insert link, insert emoji, insert file using Drive, insert photo, turn confidential mode on off are also present. तो always remember you cannot send executable file larger than 25 MB as attachment। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो अटैचमेंट आप भेजेंगे वो 25 MB से कम का ही होना चाहिए। Now sometimes you may receive some email in your inbox from unknown sources। तो these emails are known as spam and comprise of unwanted email which is sent to a large number of people with the purpose of advertising, spreading viruses or flooding the internet। तो कभी कभी आपको ऐसा होगा कि आप देखेंगे कि कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके इनबॉक्स में ना आके स्पैम बॉक्स में जाते हैं। तो ये वो मैसेजेस होते हैं जो जनरली एडवर्टीज़मेंट के मैसेजेस होते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं अपने मेल बॉक्स में गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पैम ये एक ऑप्शन आ रहा है। तो स्पैम में देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आए हुए हैं, जैसे किप्स के हैं, HDFC इंस्टा अलर्ट है, यहाँ पे मतलब वो जो जैसे जॉब्स की है, या ऐसे जो मैसेजेस हैं जो बल्क में भेजे जाते हैं, बहुत लोगों को भेजे जाते हैं, वो सारे मैसेजेस यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं। अब मैं अगर चाहूँगा, जैसे मान लीजिए ये मैसेज मुझे लगता है कोई कि ये मैसेज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैं चाहूँ तो यहाँ से सेलेक्ट करके, अब सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा
और यहाँ पे मूव टू करके मैं इनबॉक्स सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो वो जो मैसेज है वो मेरे इनबॉक्स में चला जाएगा। मतलब जो मैसेज मैं ट्रस्ट करता हूँ उसको मैं इनबॉक्स में सेंड कर सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंसेस बिटवीन स्पैम एंड जंक मेल। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस दिए गए हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज स्पैम कैन अराइव इन फॉर्म ऑफ अदर दैन ईमेल सच एज टेक्स्ट मैसेज और वाया सोशल नेटवर्क, whereas जंक मेल इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ईमेल। तो जंक मेल वो मेल होते हैं जो हमेशा ईमेल के फॉर्म में होते हैं, स्पैम टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में भी हो सकते हैं। Spam mail often comes from website which acquire your email address because you have signed on to them to avail their services or browse through their content, whereas junk mail comes from unknown websites। तो ये जो स्पैम मेल हैं ये उन वेबसाइट से आते हैं जिस पे आपने अकाउंट क्रिएट किया है या जिन वेबसाइट्स को आपने ब्राउज़ किया है, लेकिन जंक मेल आपके हमेशा अननोन वेबसाइट से आते हैं। देन आफ्टर स्पैम मेल is for the purpose of advertisement for new product or new services offered by the website, whereas junk mail attempt to spread virus or block the internet. Spam may even contain mails from some known contact with whom you are not in regular touch, whereas junk mail comes from completely unknown sources। तो देखो स्पैम मेल तो मतलब एक तरीके से कह सकते हो ये भी अनवांटेड मैसेजेस हैं और जंक मेल भी अनवांटेड मैसेजेस हैं, लेकिन जंक मेल वायरसेस को कैरी करती हैं, ये केवल एड्स को कैरी करती हैं, या ये वो मेल्स होती हैं जो वैलिड सेंडर से भी आ रही हैं लेकिन जिनके टच में हम नॉर्मली नहीं हैं। तो प्लीज़ go through all these topics. That's all for this video. In next video we will start from search engine. Thank you.